Welcome guys to another lecture of probability, and this will be the 8th lecture of probability. As we have studied, or rather we were studying conditional probability. If you remember, याद है given, if अगर होगा तो वो A होता था, then अगर find और what होता है तो वो B होता था. फिर याद है फॉर्मूला क्या था? probability of what upon if. probability of what upon if. तो आंसर क्या था? probability of what intersection if upon probability of if. अगर आपको याद होगा तो स्लैश का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और अगर ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, if the events are independent, what I am going to consider is their intersection is nothing but their product, or its intersection is nothing but their product. So this is what we have studied in the last class. Let's solve few sums from exercise 9.3. In this sum, what they have given is एक टेबल दिया है, बहुत सरल सा टेबल है. सर्जरी, दो सर्जरी हो रही है, एक थ्रोट, दूसरी हो रही है आई की. यहाँ टोटल लिख लेते हैं. ओके, और अब यहाँ वो कंडीशंस है कि whether they are satisfied और unsatisfied. not satisfied नहीं होता, unsatisfied. so यहाँ भी टोटल है. ठीक है. So now, throat surgery satisfied 70 and not satisfied is 25. Total we have 95. Eye surgery we have 90 satisfied and 15. So this is 105. Now this will be 160 and this will be 40. 200 यहाँ आना चाहिए. ये फाइनल टोटल. ओके, सो नाउ द क्वेश्चंस इज, सब रामायण दिए. 200 patients who had either eye surgery or throat surgery were asked whether they were satisfied or unsatisfied regarding the results of their surgery. Now they have given the following table which summarize their responses. If one person from 200 patients is selected at random and determine the probability. अब ध्यान से सुना. What is the probability that the person was satisfied? Person is satisfied given that he has throat surgery. बहुत सरल सा ये सम. यस, अब ध्यान दो, बहुत सिंपल है इसका आंसर. ये जो थ्रोट सर्जरी है ना, जो नीचे होता है वो टोटल होता है, और ये ऊपर उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा. यानी ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैटिस्फाइड इंटरसेक्शन थ्रोट सर्जरी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोट सर्जरी. अगर मैं इसको एस ले लेता हूं, इसको मैं T ले लेता हूँ, सॉरी इसको मैं U ले लेता हूँ, इसको मैं T ले लेता हूँ, और इसको मैं E लेता हूँ, तो S और T का इंटरसेक्शन क्या होता है? S और T का इंटरसेक्शन कहने से इसका आंसर होगा 70, और T का टोटल. सो थ्रोट सर्जरी वाले कितने? 95. एंड दिस इज व्हाट इज योर आंसर, 140 अपॉन 19. दैट्स इट. द सम इज ओवर. बहुत सरल सम है. अब नेक्स्ट सम देखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी द पर्सन वॉज अनसैटिस्फाइड. पर्सन वॉज अनसैटिस्फाइड गिवन दैट ही हैड एन आई सर्जरी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो बताओ, अनसैटिस्फाइड और आई का इंटरसेक्शन, आई और अनसैटिस्फाइड 15 है,
और I का टोटल क्या है 105. So the answer is 1/7. I hope this is clear. अब लास्ट का तुम बता दो बच्चों. The person had throat surgery given that he was unsatisfied, यानी probability of T intersection unsatisfied upon probability of, क्योंकि नीचे हमेशा क्या था if या फिर वर्ड आता है given that. So T और U का इंटरसेक्शन, T और U का इंटरसेक्शन देखो कहां मिल रहा है 25 अपॉन U, टोटल U is 40. बच्चों मेरे को लगता है आपको समझ में आया है ये. नीचे टोटल, दैट्स इट. देखो ना, S का टोटल, U का टोटल, T का टोटल, E का टोटल, ये S और T का इंटरसेक्शन, S T और U का, S और E का, E और U का. तो सारे डेटा तुम्हारे पास है. और आप लोग ऐसा करोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे बच्चों. Nobody is going to cut your marks. I repeat. What is the probability that the patient is satisfied given that he had throat surgery? Unsatisfied, he has eye surgery. Throat, given that he was unsatisfied customer. So that is how it works. Please make a note of this sum. So this is your, उसमें 3 पार्ट थे, अप्पा, डप्पा और ये चप्पा. ओके, प्लीज गो थ्रू कर लो बच्चों. आगे बढ़े. Let's move on to the next sum बच्चों. I think 9th हो गया था, 10th हो गया था. So let's start with 11th sum. 11th sum बड़ा ही अच्छा sum है. A box contains, ये अपना box है. The box contains 10 red balls and 15 green balls. So total 25 हो गया. ठीक है बच्चों. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Without replacement. So I guess मुझे पता है तुम लोग को आंसर आ गया होगा. पहला सम A, वे लोगों ने क्या मांगा है? First is red and second is green. बेटा first is red and second is green. तो इसका मतलब पहला रेड ही आएगा. So probability, or rather can I write required probability. ध्यान दो बच्चों, रेड कितनी है 10, कितने में से 25. अब एक बॉल निकल गई. ग्रीन कितनी है 15, कितने में से 24, बिकॉज 1 आउट, जिसमें ग्रीन का फर्क नहीं पड़ा है. सो नाउ 5 5s are 5, 3s are 3, 8s are 2, 4s are 2, 5s are, and the answer is 1/4. Have a look at the sum guys. अब वे लोगों ने बोला है 1 is red
one is red and other is green. अब इसमें पंच बात ये है, पंच लाइन ये है कि उन लोग ने ये नहीं बोला कि कौन सा कहाँ आएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, रेड ग्रीन प्लस ग्रीन रेड. सो बताओ रेड की प्रोबेबिलिटी 10/25. अब एक बाहर ग्रीन 15/24. अगेन ग्रीन 15/25 and red 10/24. Make sense? All right. Same answer आएगा I think 1/4 plus 1/4. The answer is half. इसमें बकायदा बोला है पहला रेड और दूसरा ग्रीन. इसमें क्या बोला? One is red, other is green. So it can be vice versa also. So make sure that you understand this part. Okay. And the sum is over, guys. Nobody is going to give you wrong. Is required probability. कोई रॉन्ग नहीं देगा आपको. ऐसे करो बस हो गया. और जेई में तो ऐसा ही करना है बच्चों, है ना. इसी कमाल की चीज है. देखिए आगे बढ़े. Let's see the next sum. A bag contains 3 yellow and 5 brown. Another bag contains, okay. So we are doing sum number 12. So bag 1, bag 2. So पहले बैग में क्या क्या दिया डेटा में? 3 yellow and 5 brown. So we have total of 8. Perfect. Next we have 4 yellow and we have 6 brown. So now it comes to 10 balls. Okay. If one ball is drawn from each bag, एक एक बॉल दोनों में से आई है, यानी something upon 8, something upon 10. What is the probability both the balls are of same color? यानी in simple terms, probability or rather required probability, आप बता सकते हो? Probability both of same color. So that means yellow from bag 1, yellow from bag 1, yellow from bag 2, या फिर brown from bag 1, brown from bag 2. अब बताइए येलो कितनी है? 3/8, 4/10, 5/8 and 6/10. So this will be 80, 12 plus 30. So this will be 42/80, 21/40. Please check, guys. Please check. Easy? I don't think so difficult था. अब उसने क्या बोला है? Best part, that probability both the balls are of different color. Okay, both different color. So that means अगर येलो आ रहा है बैग 1 में से तो ब्राउन आएगा बैग 2 में से, या फिर येलो आ रहा है बैग 2 में से तो ब्राउन आएगा बैग 1 में से. तो येलो कितना है? 3/8, brown bag 2, 6/10, yellow 4/10 and 5/8. Each 80,
38 by 80, which will be 19 by 40. Guys, please look at the sum. I don't think so कुछ difficult है इसमें, मेरे हिसाब से तो नहीं है. अब तुम्हें लग रहा है तो मुझे नहीं पता. इससे इजी मैं नहीं बना के दे सकता. चाहिए तो आप कहीं भी देख लो, ये ऐसा ही करोगे आप. प्लीज गो थ्रू गाइस. इजी. चलो, आई थिंक इजी लग रहा है. 12th के बाद बारी आती है सम नंबर 13 की. चलो देखते क्या है सम में, क्या जादू है इस सम में. अ अर्न कंटेन्स 4 ब्लैक 5 white and 6 red. That means sum number 13. 4 black, 5 white and 6 red, out of which we have 15. Okay, now 2 balls are drawn one after another without replacement. What is the probability at least one of them is black? उन लोगों को चाहिए at least one black. तो बच्चे जब भी वर्ड आता है एट लीस्ट, तो हम लोग इसमें कार्यक्रम करते हैं. 1 ब्लैक तो 1 नॉन ब्लैक, या फिर 2 ब्लैक 0 नॉन ब्लैक. आई होप दिस इज क्लियर. 1 ब्लैक 2 ब्लैक. बच्चे इसमें 2 टीम बनेगी, एक ब्लैक की और एक नॉन ब्लैक की. ऐसे समझ, ऐसे ही करोगे तो ज्यादा बेटर है. तो ब्लैक की कैटेगरी में 4 आएंगे, 5 + 6 टोटल 11. सो कैन आई से यहां होगा 4C1 11C1 black non black, again 4C2 11C0. so n of a will become, ये a है, a. 4C1 is 4, 11 upon 1 upon 1, 4 into 3 और ये 1. So the answer is 44 plus 6 50. बच्चों क्लियर है? तो probability at least one black will be n of a upon n of s. What is n of a? 50. सर आपने n of s नहीं निकाला. चलो, 2 balls out of 15. So what will be n of s? 15C2. 15 into 14. So the answer is 105. So 105 से डिवाइड करेंगे, 5 10 सा 5 21 सा. This is your answer. जेई में आ चुका समय. I repeat, कभी भी ऐसे बहुत सारे कलर्स होंगे और जिसके बारे में मांगा है ना, तो उसको एक ग्रुप कर दो, बाकी को दूसरा ग्रुप कर दो. 2 बॉल सेलेक्ट की. ये कब यूज कर सकते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट में. रिप्लेसमेंट बोला तो 15-15 होता था. यहां भी 15, यहां भी 15. ठीक है. सो 15C2 किया, n of s मिल गया. एक ब्लैक नॉन ब्लैक, 2 ब्लैक 0 नॉन ब्लैक, क्योंकि अल्टीमेटली 2 सिलेक्ट कर. ब्लैक कितने? 4. नॉन ब्लैक. दैट्स इट. मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट समझो. प्लीज गो थ्रू गाइस.
Please go through. This was your sum number 13. Okay, may I rub this? Let's move on to the next sum. Two cards are drawn one after another from a pack of 52 cards. Right now I am doing 15 sum, 14 sum हमारा हो चुका था. Two cards are drawn from a pack of without replacement. What is the probability both cards drawn are face card? बच्चों face card कितने होते हैं? तो start करें. Two cards without replacement. डायरेक्ट आंसर दे सकते हो तुम लोग. Probability. पहला फेस कार्ड है 13 नहीं 12 फेस कार्ड होते हैं आउट ऑफ 52. सो 12 आउट ऑफ 52 एंड नाउ 11 एक बाहर गया 51. फेस कार्ड कम हो गया ना बेटा. सो 3 4 3 4 13 और ये तो जाएगा ही नहीं. 3 1 7 so 11 upon 221. I hope this is clear. बच्चों इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है. बहुत सिंपल. अच्छा विद रिप्लेसमेंट होता तो कहने से 12/52 और इधर भी 12/52 क्योंकि जितना रिप्लेस हुआ है जितना निकालो वापस उतना ही डाल रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट हुआ ना. तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रिपीट होता है. आई होप दिस इज क्लियर. सर एग्जाम में ऐसा करेंगे तो चलेगा? हाँ बच्चों एग्जाम में ऐसा करोगे तो चलेगा. थोड़े बहुत सेंटेंसेस लिख देना जिससे टीचर को भी लगे हाँ हम लोग ने भारी भारी स्टेटमेंट लिखे और बच्चे को आता है. थोड़ा बहुत जैसे कि मैंने ये लिखा है तो इसको एक प्रॉपर सेंटेंस में लिख देना. फाइनली यही मैटर करेगा. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. इसीलिए बोलते हैं इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके प्लीज गो थ्रू गाइस. चलो 16 सम देखते हैं. मेरा फेवरेट सम. अच्छा टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर शायद गलत दिए हुए सो पीछे से आंसर देखना ही नहीं. 16 sum is my favorite sum. So let's work on 16 sum. Okay. A bag A. Bag A. और मेरे को लगता है फिर बैग B भी होगा. चलो देखते हैं. Bag A contains 3 red and 2 white balls. So total will be 5. Bag B contains 2 red and 5 white. So total 7. Okay. Perfect. अब ध्यान दो. A bag is selected at random. A ball is drawn and put into another bag. यानी इधर से बैग लिया. And then the ball is drawn from that bag. Find the probability that both the ball drawn are of same color. है ना इंटरेस्टिंग थोड़ा. यानी red from bag 1 is gone into bag 2 or rather bag A. Now this is gone into bag B and again they have taken out red from bag
B. I hope this is clear. या फिर white from bag A which will go to bag B and again I will take out white from bag B. अब उससे क्या बोला है? A bag is selected at random, यानी ये ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है. हाँ, यानी ये ऐसा का ऐसा भी हो सकता है. बच्चों सुनो मेरी बात. उसने क्या बोला है? भाई इसमें से बॉल लेगा ना वो उसमें डालना है. सही है. अब मैंने रेड लिया, उसको इसमें डाल दिया और फिर वापस रेड निकालना है. सेम कलर बोला है. व्हाइट लिया, बैग बी में डालना है और वापस व्हाइट को लिया. तो अब देखो कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी. सो कैन आई से रेड का सफर फ्रॉम बैग ए टू बैग बी. देन फिर से रेड का सफर फ्रॉम बैग बी बैग ए. व्हाइट फ्रॉम बैग A to bag B, and finally white from bag. अब ये डिफरेंट कलर वाला आप बताओगे. रेड फिर यहाँ व्हाइट, व्हाइट रेड, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड. ये आप करोगे, मैं नहीं करूँगा. बैग बी से बैग. आई होप सबको समझा है. तो चलो सोचे हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएं. रेड बैग, तो इसमें 3/5 होगा. अब ये इसमें जाएगा तो रेड बढ़ गया तो रेड वापस 3 होगा, बट 3/8 होगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो यहां मैं लिख रहा हूं 3 आउट ऑफ 5. 3 आउट ऑफ 5 इधर बढ़ गया. 2 + 1 आउट ऑफ 7 + 1. बच्चों सबको समझा? ये +1 का मतलब आया है उसमें. अब चलो उल्टा करते हैं. नाउ बैग 2 से इधर आना है तो 2 आउट ऑफ 7 यानी 2/7 है ना बच्चों. अब इसमें एक्स्ट्रा आया तो 4 हो जाएंगे रेड और ये 6 हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे हम लोग? 3 + 1 आउट ऑफ 5 + 1. इसका मतलब समझा? क्योंकि दोनों में +1 होगा. एक बॉल इसमें आई तो दोनों बढ़ेगा ना. रेड तो बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ टोटल भी बढ़ रहा है. आई होप सबको समझा. व्हाइट के लिए बताओ. अब तुम व्हाइट के लिए बताओ. पहला सिंपल है 2/5 तो 2 आउट ऑफ 5 इनटू. अभी इसमें आएगा तो व्हाइट बढ़ जाएगा तो 5 + 1 आउट ऑफ 7 + 1. So my answer will be 6/8. I hope this is clear. Finally, white इधर से तो 5 आउट ऑफ 7 यानी 5/7. अब एक इसमें आया, व्हाइट बढ़ गया तो 2 + 1 आउट ऑफ 5 + 1 यानी 3/6. आई होप सबको समझा है बच्चों. सबको समझा? यस बच्चों. सो नाउ ये लाल से लिख रहा हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सबको एडिशन करेंगे सारे केस. केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4. बच्चों इसका आंसर है 9/40. इसका आंसर है 8/42, 12/40, 15/42. चलो डाल दो इसमें वैल्यूज. सो 9/40, 8/42, 12/40, 15/42. परफेक्ट. 9 और ये 19/40, 21/42.
ना 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 23/42। अब आपको समझा, एलसीएम लेना आता है सबको। सो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 19 इंटू 42 प्लस 23 इंटू 40 अपॉन 40 इंटू 42। आई होप दिस इज क्लियर। 40 into 42 will be giving me 0 8 1680 and this will be 901। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, अच्छा सम, मजेदार वाला सम है, सोचने वाला सम है, ट्रिकी सम है। रेड निकाला उसमें डाला बढ़ गया, रेड निकाला इसमें डाला, रैंडम बोला है, रैंडम। तो रैंडम का मतलब क्या, बहुत सिंपल सी बात है। तुम लोग को ये सोचना है कि भाई समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। प्लीज लुक एट द सम। Alright, with this we end with conditional probability. So we stop here for the day. We'll continue in the next class. एडवांस वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कंडीशंस के अंदर कंडीशंस, तो उसको बेस थियरम बोलते हैं। थियरम मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा ताकि तुम लोग सम सॉल्व कर सको। सो दिस वाज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे लिए डू इट योरसेल्फ है, DIY है कि आप लोगों को रेड और वाइट, यानी रेड वाइट वाइट रेड ऐसा कॉम्बिनेशन बना के रेडी करना, उसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? ऑलराइट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गॉड ब्लेस।